learners, I am Rajesh Diyajare sir, and in this video, in standard 7, we will study the poem The Flower School, which is written by Rabindranath Tagore. It is third poem in the first unit of standard 7, Treasures of English, a skill-based course in communication English, main course book published by Cordova Publications. So, this particular poem titled The Flower School by Rabindranath Tagore starts with the text: when storm clouds rumble in the sky and June showers come down, the moist east wind comes marching over the heath to blow its bagpipes among the bamboos. Then crowds of flowers come out of a sudden from nobody knows where and dance upon the grass in wild glee. Mother, I really think the flowers go to school underground. They do their lessons with doors shut, and if they want to come out to play before it is time, their master makes them stand in a corner. When the rains come, they have their holidays. Branches clash together in the forest, and the leaves rustle in the wild wind. The thunderclouds clap their giant hands, and the flower children rush out in dresses of pink and yellow and white. Do you know, mother? Their home is in the sky, where the stars are. Haven't you seen how eager they are to get there? Don't you know why they are in such a hurry? Of course, I can guess to whom they raise their arms. They have their mother as I have my own. It is written by Rabindranath Tagore. So, in the first stanza, when storm clouds rumble in the sky and June showers come down, the moist east wind comes marching over the heath to blow its bagpipes among the bamboos. Then crowds of flowers come out of a sudden from nobody knows where and dance upon the grass in wild glee. In this stanza, इस स्टैंजा में जो रविंद्रनाथ टैगोर है, he sees the flowers and wonders that from where they are come, कि कहाँ से वो आए हैं. मतलब कि ये जो पर्टिकुलर पोयम है, ये स्प्रिंग सीजन जो है, स्प्रिंग सीजन का मतलब कौन सा सीजन हो गया? स्प्रिंग मतलब जो बसंत ऋतु है. तो बसंत ऋतु जो है, बसंत ऋतु में ये जब अचानक से फूलों को देखते हैं पोएट रविंद्रनाथ टैगोर, या आप ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पोयम में आपको जैसे पिक्चर में एक मम्मी और एक लड़का, ऐसे दो लियो दिख रहे हैं, एक मम्मी के साथ में एक लड़का दिख रहा है. तो जो ये लड़का है, ये अपने मतलब जब देखता है अपनी आंखों से कि बसंत ऋतु में अचानक से जो स्टॉर्म क्लाउड्स है, मतलब कि जो क्या बोलेंगे, क्लाउड जो है वो रंबल हुए है मीन्स क्या हो रहे हैं? प्रतिध्वनि आ रही, इको हो रहे, मतलब कि बादलों की आवाज आ रही है एक के बाद एक. और तभी जब वो देखते हैं कि नमी है और उसके बाद में कई बैक पाइप्स वगैरह बैम्बू से आवाज आ रही है. बैक पाइप भी एक क्या है? स्कॉटलैंड का में बजाया जाने वाला एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. तो ऐसी आवाजें आ रही है और खूबसूरत से जो फूल है, फूल निकले हुए हैं और वो आश्चर्यचकित होते हैं, वो वंडर फील करते हैं, वो सोचते रहते हैं कि अरे ये जो फूल है ये अभी नहीं थे और अभी स्प्रिंग सीजन में अचानक से ये कहां से आए होंगे. और फिर वो जो फूलों को बारीकी से जब देखते हैं, उनको जो ऑब्जर्व करते हैं, तब वो ऐसा मानते हैं कि जो फूल है, फूलों की जो भीड़ में जो फूल है, मतलब बहुत सारे जो फूल है, वो क्या कर रहे हैं? वो जहां से भी आए हो, पता नहीं कहां से आए, पर ये फूल डांस कर रहे हैं. मतलब वो जो हिलते हैं करके बोल रहे हैं कि वो फूल डांस कर रहे हैं और जो फूल है वो खुशियां मना रहे हैं, हैप्पीनेस के साथ में जी रहे हैं. देन जो बॉय है इस पोयम में, वो, या आप सीधे पोएट है बोल सकते हैं, तो मम्मी को फिर आगे बोलता है वो लड़का, क्या बोलता है? मदर, आई रियली थिंक द फ्लावर्स गो टू स्कूल अंडरग्राउंड.
they do their lessons with doors shut, and if they want to come out to play before it is time, their master makes them stand in a corner. When the rains come, they have their holidays. तो ये क्या बोलता है कि मम्मी को बता रहा है, he addresses to his mother and he says that मुझे सच में ऐसा लगता है कि ये जो फूल है, ये फूल स्कूल में जाते हैं, ये फूल भी स्कूल में जाते हैं मेरी तरह, ठीक है, क्योंकि वो बच्चा है वो जो स्कूल में जाता है। तो वो बोलता है कि मम्मी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फूल है ये फूल स्कूल में जाते हैं, बस फर्क इतना है कि इनकी स्कूल जो है वो अंडरग्राउंड में अवेलेबल है, मतलब अंडरग्राउंड में है। अंडरग्राउंड मीन्स जमीन के नीचे है। ये भी स्कूल में जाते हैं पर इनकी स्कूल जमीन के नीचे मतलब अंडरग्राउंड है। वो भी हमारी तरह दरवाजे बंद करके लेसन पढ़ते हैं, मतलब कि सीखते हैं। और अगर वो मतलब समय से पहले, मतलब कि क्लास छूटने से पहले अगर कभी उनका खेलने का मन हो या अगर खेलने निकलने की कोशिश करे, तो हमारे टीचर की तरह उनके भी जो टीचर्स है, उनके भी जो मास्टर्स है, वो उन्हें भी पनिश करते हैं। कहाँ पे? मतलब कि जो कॉर्नर है, कॉर्नर पर खड़ा रहने की जो पनिश है, वो पनिशमेंट उन्हें भी मिलती है। और उसके बाद जब बारिश आनी शुरू होती है, जब बरसात शुरू होती है, तब उनको ब्रेक मिलता है, उनको वैकेशन मिलती है या उनको छुट्टियां लगती है। जैसे हमें समर सीजन में छुट्टियां लगती है, वैसे उन्हें बारिश मतलब बरसात आने के बाद में फूलों की हॉलीडेज होती है। Then in the third stanza, poet says, branches clash together in the forest, and the leaves rustle in the wild wind. The thunder clouds clap their giant hands, and the flower children rush out in dresses of pink and yellow and white. फिर जब बारिश वगैरह आ रही है, तो आप सबको पता है कि बरसात के मौसम में क्या होता है, तो जो मतलब हवा की वजह से या तूफान की वजह से पेड़ हिलते रहते हैं, पेड़ों की डालियां हिलती है, एक दूसरे को टकराती है ना। उसके बाद में जो लीव्स है, जो पत्तियां है, वो रसल होती है मतलब पत्तियों का भी, पेड़ों की जो पत्ते हैं उनका भी आवाज आने लगता है। और जो थंडर क्लाउड्स है, मतलब कि जो स्टॉर्म है, जो क्या बोलेंगे, जो बादल है, वो क्या होते हैं, वो जोर जोर से गरजने लगते हैं। और तभी फिर ये पोएट कहते हैं, ये जो बच्चा है ये कहता है कि तभी ये जो फ्लावर्स है, ये जो बच्चे हैं, बच्चे मतलब कौन? फूल बच्चे है ना, फूल के रूप में जो बच्चे हैं, वो जो बच्चे हैं मतलब कि जो फूल है, वो हमारी तरह यूनिफॉर्म पहनते हैं। कौन सा यूनिफॉर्म? पिंक, येलो एंड व्हाइट, क्योंकि जनरली फूलों का कलर पीला, गुलाबी या फिर व्हाइट मतलब सफेद रहता है। तो वो बोलता है बच्चा कि फिर इसके बाद में जो फूल है वो पिंक, येलो एंड जो व्हाइट है, इस कलर का यूनिफॉर्म पहनते हैं। एंड इन द लास्ट स्टैंजा द बॉय टेल्स हिज मदर, डू यू नो मदर, देयर होम इज इन द स्काई वेयर द स्टार्स आर। वो बताता है, मम्मी क्या तुम्हें पता है कि जो फूल है, फूलों का भी घर है कहाँ पे? स्काई में, मतलब कि आसमान में। कहाँ पे? जहां पे तारे रहते हैं, जहां पे स्टार्स रहते हैं। एंड देन ही आस्क्ड हिज मदर, उसके बाद मम्मी को एक सवाल भी पूछता है। क्या पूछता है? हैवंट यू सीन हाउ ईगर दे आर टू गेट देयर, डोंट यू नो व्हाई दे आर इन सच अ हरी। क्या तुमने ये नहीं देखा कि फूल वहां मतलब अपने घर जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्साही मतलब ईगर रहते हैं, हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। और क्या तुम्हें ये नहीं पता कि वो क्यों जल्दी में रहते होंगे अपने घर में जाने के लिए? और फिर उसका जवाब भी वही देता है। क्या देता है? ऑफ कोर्स आई कैन गेस टू whom they raise their arms, they have their mother as I have my own। बोलता है पक्का मुझे पूरा बिलीव है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने घर जाने के लिए क्यों इतने ज्यादा जल्दी में रहते होंगे, क्यों एक्साइटेड रहते होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं ये सोचता हूँ कि उनके घर में उनको भी जो एक बाहों में लेने वाली, उनको गले लगाने वाली जो उनकी मम्मी है, वो इंतजार कर रही होगी, और उन्हें भी मम्मी होगी। जिस तरह मेरी मम्मी आप हो, उस तरह से फूलों की भी मम्मी होंगी, जिससे मिलने के लिए फूल अपने घर जाने के लिए, मतलब होम में या स्काई में जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्साही, ईगर, एक्साइटेड रहते हैं। तो ये है एकदम ब्यूटीफुल सी पोयम द फ्लावर स्कूल, which is written by Rabindranath Tagore, and
रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में अगर हम देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर वाज बोर्न इन 1861। कब इनका जन्म हुआ? 1861 में, और he died in 1941. So he is popularly known as गुरुदेव। इन्हें मतलब रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव नाम से जनरली पहचाना जाता है। टैगोर greatly influenced Bengali literature and music in the early years of the 20th century। जो 20वीं शताब्दी है, 20वीं सदी, तो 20वीं सदी में उन्होंने बंगाली साहित्य जो है, बंगाली लैंग्वेज में जो लिटरेचर है उसे, और बंगाली में जो म्यूजिक है उसे भी बहुत ज्यादा प्रभावित किया या उसमें बहुत ज्यादा अच्छा काम किया उन्होंने। एक उनके वजह से बंगाल का जो साहित्य मतलब लिटरेचर है या जो म्यूजिक है बंगाल की, वो उन्होंने उसको एक डेवलप किया बोल सकते हैं या इन्फ्लुएंस किया। उनका बहुत ज्यादा प्रभाव है बंगाली साहित्य पर और बंगाली संगीत पर। As the author of गीतांजलि, he was conferred with Nobel Prize in Literature। तो इन्होंने, और एक बहुत फेमस इनका वर्क है गीतांजलि, जो कि पोएम्स की ही का ही एक कलेक्शन है गीतांजलि, और इसे जो लिटरेचर वर्ल्ड में मतलब राइटिंग की जो दुनिया है, राइटिंग वर्ल्ड में मतलब लिटरेचर जिसे बोलते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो प्राइज है दुनिया का वो है नोबेल प्राइज, है ना। आप सबको पता भी होगा कि नोबेल प्राइज पर्टिकुलर कुछ जो क्षेत्र है वहां पे मिलता है, तो उसमें साहित्य क्षेत्र मतलब लिटरेचर के लिए भी नोबेल प्राइज मिलता है। और रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल प्राइज जीतने वाले इंडिया के पहले साहित्यिक है मतलब लिटरेट है, और सिर्फ लिटरेचर में ही नहीं बल्कि टोटल इंडिया के किसी भी क्षेत्र में नोबेल प्राइज जीतने वाले वो पहले पर्सन है। तो आप सोच सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर कितने ग्रेट है। और ऑब्वियसली हम जो नेशनल एंथम गाते हैं जन गण मन, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर का ही लिखा हुआ है। He founded Shanti Niketan, an academic campus based on his idealistic principles of education। और उन्होंने जो शांति निकेतन नाम से एक एकेडमिक कैंपस फाउंड किया मतलब निर्माण किया, स्थापित किया। और ये जो एकेडमिक कैंपस है यहाँ पे ये ओपन मतलब नेचर के साथ, निसर्ग के में जो नैसर्गिक जो वातावरण, नेचुरल जो रिसोर्सेज वगैरह का वातावरण है, मतलब बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं, एकदम नेचर में खुली जगह पर, ऐसी जगह पर वो एजुकेशन हो ऐसा वो चाहते थे। उनके कुछ एजुकेशन से संबंधित की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उनके खुद के कुछ आइडिया थी एक, और उसी को इम्प्लीमेंट करते हुए उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में क्या किया, एक शांति निकेतन नाम से स्कूल या पूरा एक कैंपस ही खोला था। तो ये भी उन्होंने स्थापित किया है। तो आप रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानकारी निकालना चाहे तो निकाल ही सकते हैं। और आपके लिए होमवर्क है कि आपको ये जो पोएम है, ये पोएम को रीड ही नहीं बल्कि लर्न करना है। आई होप आपको ये पोएम समझ रही होंगी, इसका मीनिंग समझ गया होगा। अगर आपको ये पोएम समझी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो ये शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।